So it is known as eddy currents or focal currents. Now what is it? मैंने दो टाइप के डिफरेंट जगह से ये पिक्चर्स लिए हैं. द लेफ्ट वन यू कैन सी द पेयर ऑफ डायग्राम्स आर बाय फ्रॉम योर दिस textbook only, which is actually very simple. But second one I had explained and put because you can understand from where the south and north and magnetic field actually कैसे हम लोग बना सकते हैं कि south and north अगर हमारे पास कोई ऐसा arrangement है तो magnetic field is produced by this. And induced circulating loop, आप देखो यहाँ पे definition देख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे actual क्या हो रहा है. So induced circulating looping currents produced in a solid metal. A induced circulating looping current, you can see this looping current where suppose this is your PO. Okay, this is your PO point. So that from this PO point, you have arranged this solid metal sheet so that it can go forward and backward. Okay, it's like a pendulum. It's an arrangement of pendulum, but instead of that pop thing, we have a metal sheet. The metal sheet can able to move forward and backward. Now, since it is able to move backward and forward, let us produce some magnetic field over there. So how we produce here, you can see south and north pole. It is like a horseshoe magnet, and because of that, we could arrange in that manner. And you can see that one time when this south and north, okay, one time you can see that it is like a direction will be always like this. The direction of the magnetic field. This is the direction of magnetic field. Now, whenever this sheet is going to come inside, तो क्या होगा? So induction due to the magnetic induction. What is this magnetic induction? We learned कि भाई whenever magnetic field is present and your motion, relative motion is required. That means suppose this sheet, this is metal plate. If your metal plate is shifting from here to here, that means it is entering to magnetic. एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके साथ ये मेटल के साथ जो भी मैग्नेटिक फील्ड है पहले तो अटैच होगी, कांटेक्ट में आएगा एंड देयर विल बी चेंज आल्सो. जब मिडल में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज हाई, सो दैट मींस देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन magnetic flux. There is a change in magnetic flux linked with this metal sheet, and due to that some induced EMF will be produced on the metal sheet, and due to that some current will be induced on the metal plate. So that current is called as eddy current. Some extra current is produced into it. कुछ नहीं है, मैकेनिकल हमने अरेंजमेंट किया है साउथ नॉर्थ पोल से. मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूसिंग सम magnets. Due to the magnet we induce the magnetic field, and metal plate is moving backward and forward. When it enters to the field, it is inducing in this I जो ये I लिखा है, that is, and the direction also matters. Direction also matters. ये induced EMF क्यों produce हुआ, ये पहले पढ़ चुका है. What is it? तो जब भी there is a change, हमने relative motion पढ़ा था, ये coil, फिर ये bar magnet, suppose ये N and S, ये यहाँ पे आया तो नेचर डज नॉट वांट एनी चेंज, तो इसलिए नॉट जैसे बिहेव करने लगा ताकि ये बार मैग्नेट यहाँ पे आना नहीं चाहिए. तो बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, तो जब भी ये मेटल शीट इज एंटरिंग इनसाइड तो ये रिपल्सिव के जैसे बिहेव करेगा, right? But now what happens from the middle, if it shifts to the other side, तब ये क्या करेगा? Attractive. जब ये शीट बीच में आ गई, so now the direction of the current is changed, totally opposite to the initial current, the direction. पहले तो वो शीट को आने नहीं दे रहा था, तो रिपल्सिव फोर्स के लिए करंट प्रोड्यूस हुआ. अब वो बीच में आ गया है बिटवीन द मैग्नेट्स, अब उसको जाने नहीं दे रहा है. सो अगेन अट्रैक्टिव फोर्स के लिए वन करंट इज इंड्यूस्ड. तो ये करंट है एक्स्ट्रा. थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है, थोड़े एडवांटेजेस. Now how to reduce it? In some cases no, it is like a disadvantage. So if we want to decrease it, what do we do? तो आप सेकेंड डायग्राम देख लो. शीट की जगह पे हमने क्या रख लिया, you can see that शीट कुछ
because this EMF induced, this current induced is basically depends on the area of the metal plate. तो हमने एरिया क्या कर लिया, कम कर लिया. So this current will be less in amount. So to reduce the eddy current, we can use the plate in somewhat this. Ab you will read the definition, you will understand क्या actual क्या हुआ है. So the induced circulating current, ये जो current से induce हो रहा है वो circular से, it's like a whirlpool. जो पानी में हम लोग पत्थर डालते हैं तो ऐसा whirlpool बनते हैं ना. Okay, so that way it is like a induced circulating looping currents produced in the solid metal due to the change in magnetic field. First it is increasing, maximum, decreasing, again coming, increasing, maximum, decreasing. So it happens, and due to that whatever current we get, that is called eddy current. याद कैसे करेंगे? If the metal plate is moving backward and forward in the presence of the magnetic field, so that your magnetic flux is changing with time, some extra current will be induced in your metal sheet. So that is called your eddy current. ये क्यों eddy current की definition पे इतना ध्यान दे रहा है? Because ये वाइवा क्वेश्चन है. ये समझ लो, ये आपका वाइवा क्वेश्चन है, ये आपके इंटरनल मार्क्स के लिए हेल्प करेगा. This is very important thing. No need to draw both the diagrams. You can just take screenshot and एक ही diagram left वाला part draw करने की जरूरत नहीं है, just understand कर लो बस. Yeah, where is it? कुछ नहीं बनाया मैंने. ये भी गायब. Just a second. Yeah, it happens sometimes. Yeah. So eddy currents are undesirable. Eddy currents are undesirable. Undesirable मतलब in some cases it is unwanted current. ये कहाँ पे unwanted current है? I'll tell you. अपना जो generator होता है ना, वहां पे generator मतलब जब वो like metal is fixed and your metal your disc is moving, so your disc का rotation no कम कर लेता है. Okay, so that disc would not move. वहां पे वो अनडिजायरेबल होता है कुछ कुछ जगह पे. एंड दे प्रोड्यूस हीट ऑल्सो. जब भी करंट है, हीट कहाँ से आता है? बिकॉज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ये पता है, ये हीट का हाँ, ये पावर का फॉर्मूला है. व्हेनेवर पावर इज देयर, पावर इज इंड्यूस्ड, पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ओनली दिस मूवमेंट, मैकेनिकल मूवमेंट. वो एच वाला फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी. एज योर आई इंक्रीजेस, as your I increases, your heat will increase, and because of that we get heat, and it induces in the core. So dissipates electrical energy in the form of heat, and heat का formula एक लिख लो. बिकॉज अगर आपने बोला कि भाई एडी करंट के क्या डिसएडवांटेज है, तो इट इज लाइक डिसिपेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. हीट क्यों? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये सिली क्वेश्चन है, ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एडी करंट, एडी करंट्स आर मिनिमाइज्ड. कैसे कम कर सकते हैं? तो ये कैसे, लाइक लेमिनेशन ऑफ द मेटल. जो भी मेटल है अपना जो मूव हो रहा है या फिर कोर से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग शील्डेड कर लेंगे. मेटल कोर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं लेमिनेट करके. लेमिनेशन के लिए एक मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड लाकर. इट इज, व्हाट इज इट? तो कभी देखा होगा कि कोई सर्किट वगैरह ओपन किया है तो उसमें ना एक शाइनी वार्निश टाइप का कोई शाइनी ऐसा कुछ लगा हुआ होगा विद ऑन द कॉइल्स एंड ऑल. सो दैट इज नथिंग बट लाकर. और राजस्थान में वैसे लाख बोलते हैं हम लोग, लाख की चूड़ियां. एंड जो लाख जो है दैट इज वुडन, एक्चुअली वुड से है, वो लॉन्ग प्रोसेस है. तो वो इंसुलेटिंग, द लेमिनेशन आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक लाकर. तो इससे कर सकते हैं लेमिनेट, सो दैट योर एडी करंट विल बी मूव. The plane of the lamination must be arranged parallel to the magnetic field so that can put एडी करंट पाथ के बीच में ही डाल दो लेमिनेशन,
so that arrangement will reduce the strength of the eddy current. बस बहुत लंबा लिखा है, but just imagine point wise कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, हमने जो प्लेन जो लेमिनेट किया है, whatever arrange parallel, because वो parallel होना चाहिए, because the rotation would be like this, increasing and decreasing. That is the reason, so that आपका dissipation of electrical energy will be reduced with, and heat will be ultimately reduced, because heat depends on the square of the strength of, ये पूरा since के बाद नहीं लिखोगे चलेगा, आप just H is equal to I square RT लिख लो, वही square of the strength of the current पे depend है आपका heat loss. So a metallic block, if we have magnetic field, so the current will be in this direction. If it is upward direction, ये हमेशा याद रखो. If I am placing my thumb in the direction of magnetic field, तो actual direction तो ये दिखा रहा है, okay, but it is opposing current. तो इसलिए clockwise मेरा हाथ दिखा रहा है, but the current eddy current की direction anti-clockwise when it is entering to the field. अब वो जब निकल जाएगा फील्ड से, so direction will be even उल्टा. So direction याद रखो. ये है eddy current. हाँ, उसके advantage and disadvantage also we are going to learn. These are like कुछ disadvantage हो गए. Now we'll see advantages. Eddy currents mention कर applications, but we have applications of this. ये फॉरेन में जो भी ट्रेन होती है ना, जिसके लाइक ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाता है, दैट इज नॉट मैकेनिकल ब्रेक एंड विदाउट जर्क, you're feeling that there is no jerk even when those trains are stopping, or even with help, even for starting also, because starting तो हम लोग स्मूथ बना सकते हैं, that is easy, but ये ब्रेक कैसे विदाउट जर्क, so that is the because of this magnetic braking. ये है क्या, तो जो रेल होते हैं उसके जो ट्रैक होते हैं, वहां पे उन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया. अब वो व्हील में भी मैग्नेट्स हैं, ओके, ये ट्रैक पे है एंड व्हील्स पे है, दैट मीन्स उनके बीच में क्या लगेगा फिर, अपोजिंग फोर्स. तो जैसे यहाँ पे आ गया आपका व्हील, यहाँ पे ट्रेन का व्हील, ओके, व्हेन इट रीचेस ओवर हियर, बिकॉज ऑफ द अपोजिंग फोर्स, it is going to reduce the flow, motion reduce हो गया. By the over here if it reaches, अब ये increase होगा, यहाँ पे reduce होगा, मतलब opposite direction में force लगेगा, and मतलब ये like repulsion के लिए, and यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गया, ओके, यहाँ तक wheel पहुंच गया, but यहाँ पे attraction रहेगा. तो because of this repulsion and then attraction will stop the flow of the मतलब motion of the train, and that is how the train stops without the jerk. तो इसलिए कोई मैकेनिकल काम नहीं है, तो इसलिए सोचो कि कितना otherwise like tear and wear and all these things happens if it is like mechanical brake, जो कैसे लगते हैं actually. So that is why braking effect is smooth with the help of eddy current. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मतलब पहले समझ लेते हैं व्हाट इज डैम्पिंग. ऊपर वाला काफी लिखना है. Strong electromagnets are situated above the rails in some electrically powered trains. Obviously, electrically powered train, diesel engine थोड़ी है.
when the electromagnets are activated at certain points only on the rail tracks only they have arranged, and which one should be at like for which train which electromagnet should be activated, that is all controlled by the software. So that is how they know okay which one should be activated at that time. So the eddy currents induced in the rail oppose the motion of the train as there is no mechanical linkages. The braking effect is smooth. अब ये डैम्पिंग देख लेते हैं. डैम्पिंग मतलब क्या, लास्ट ईयर हमने देखा था अगर पेंडुलम पीओ पॉइंट से कोई पेंडुलम मूव हो रहा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सो आफ्टर सम टाइम इट इज रिड्यूसिंग, उसका मोशन रिड्यूस होगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या, कौन सा एक्चुअली फ्रिक्शन है वो विस्कोसिटी बोला जाए. सपोज इट इज इन एयर, so because of the air viscous force it reduces and it is called damping. damping आ रहा है. damping मतलब क्या, amplitude reduce हो रहा है. amplitude मतलब क्या, amplitude मतलब maximum displacement from mean position. So amplitude reducing of amplitude is known as damping. तो electromagnetic damping क्या है? Okay. So here हमने पढ़ा था एक 4th चैप्टर में कुछ गैल्वेनोमीटर के जैसे कोई चीज बनाई थी. अगर गैल्वेनोमीटर याद है तो हमारे पास एक पीओ स्ट्रिंग थी, स्प्रिंग, एंड ओवर देयर वो रेक्टेंगुलर लूप काइंड ऑफ एक था, एंड उससे अटैच्ड वो अपना एरो which can show sometimes at 0, sometimes at maximum point, and यहाँ वहाँ वो fluctuate होता रहता है. Okay, so that way it can show the deflection. ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है बाय द वे. अगर ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन would not be stable, we won't be able to take the zero ranking, right? ये null point कहाँ पे, with this point if it reaches, it is called null point. ये null point पे कैसे पहुंचेगा? So damping would help us get the null point. Otherwise वो move करता रहेगा. तो डैम्पिंग के लिए कुछ फ्रिक्शन चाहिए वहां पे. तो फ्रिक्शन कौन प्रोड्यूस करता है? बिकॉज वो गैल्वेनोमीटर के टाइम पे इफ यू रिमेम्बर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाए थे हमने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो बिकॉज ऑफ ये लूप आपका लूप है एंड ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. सो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लूप वो मूव करेगा, एडी करंट इंड्यूस, एंड वो एरो जो है आपका गैल्वेनोमीटर एरो विल स्टॉप एट दैट. Otherwise वो move होता रहेगा. So this time damping helped us to get the reading. Just easy. Hey, anyone has any doubt can ask any point, please. I'm here to solve your doubts. Otherwise ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है तो you can score. ये एक क्वेश्चन बनता है इसमें से आएगा ही आएगा. वो 2 points are done. 2 to go. Induction furnace. अलॉय कैसे बनते हैं पता है? अलॉयज आर मेड अप ऑफ लाइक कुछ मेटल्स को मिक्स करते हैं ना. सपोज मेटल 1, मेटल 2 एंड कुछ मेटल 3, इनको मिक्स करते हैं कुछ एक टेम्परेचर पे, उसको हीट करते हैं, देन ओनली इट वुड मेड. ये हीटिंग मतलब ये सपोज आयन वायन को हीट करना है ऑल, इट इज वेरी हाई टेम्परेचर. कैसे होल से गर्म करेंगे? नहीं, एट दैट टाइम दिस इंडक्शन फर्नेस विल हेल्प. बहुत क्यों? क्योंकि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. जितना ज्यादा आपका एडी करंट उतना हीट विल इंड्यूस. दैट इज व्हाई हीट विल बी प्रोड्यूस्ड. दैट इज हाउ वी गेट. तो इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर एंड कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर अलॉयज बनाने. अलॉय कैसे बनते हैं? बाय मेल्टिंग द constituent metal, जो भी metal चाहिए उसको. high frequency alternating current is passed a coil. alternating current मतलब वही, क्यों कैसे? तो यहाँ पे अगर साउथ है, यहाँ पे अगर नॉर्थ है, एक बार यहाँ आया तो डायरेक्शन वाज समवॉट लाइक दिस, दूसरी बार यहाँ जा रहा है तो डायरेक्शन इज लाइक दिस. ये तो अल्टरनेटिंग करंट ही है ना. एक बार डायरेक्शन ये हो रही है, दूसरी बार डायरेक्शन ये हो रही है, दैट मींस अल्टरनेटिंग करंट ही है ये. दैट इज हाउ वी गेट we are providing high frequency alternating current is passed through a coil.
अगर आप YouTube पे काफी लोगों ने देखा भी होगा, एंड इफ यू हैव अ कॉइल, कुछ एक कॉइल है जिसको लाइक उस पे वुंड की हुई, एंड वी आर कनेक्टिंग अ बैटरी यहाँ के साथ, नॉर्मल कोई भी बैटरी हमने कनेक्ट कर, यहाँ पे एक मेटल डिस्क रखो एंड अटैच करो, की रखी है तो अटैच करो, क्लोज द की, दिस डिस्क विल राइज। देखा होगा ना, ये तो सिंपल सा है वो। ओके, ये देखा होगा, सबने देखा होगा ये पार्ट, कोई मैजिक नहीं है ये एडी करंट है। बिकॉज ऑफ द एडी करंट रिपल्सिव फोर्स विल बी इंड्यूस्ड इनटू इट, बिकॉज ये नीचे जो फ्लो हो रहा है करंट, उसकी टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर फ्लो हो रहा है, सो इट विल लाइक इट लुक्स लाइक a flowing on floating in the air, but it's not. वैसे alternating high frequency alternating current passing through the coil which surrounds the metal to be melted. रीजन वही लिख लो आप, H is equal to I square RT in the bracket. High, your heat will be, metal can be. The eddy currents generated in the metals produce high temperature sufficient to melt it. हो गया वो, इतना सारा नहीं लिखने की, आप पॉइंट में लिख सकते हो, बाय द वे टू अंडरस्टैंड इट यू शुड राइट एटलीस्ट वंस, पूरा लिखो फिर बाद में आप रिवाइज करो, ऐसे लगने की जरूरत नहीं है, वो भी प्रैक्टिस गई, अभी तो यू विल बी हैविंग एमसीक्यू पेपर, तो नो नीड टू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, के पेपर खत्म नहीं हुआ तो डर ही नहीं है वो तो। कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, मीटर में भी ये एडी करंट है यूजफुल, सो दैट ये जो रोटेशन होता है, मीटर देखा है, मीटर भी ऐसे रोटेट करती है, उसकी डिस्क जो होती है ना वो भी रोटेट करती है, शाइनी मेटल डिस्क, अभी तो डिजिटल है ये एनालॉग की बात चल रही है, अभी तो गया काम से वो। इलेक्ट्रिक पावर मीटर में भी it will otherwise rotate continuously, so that is why eddy current should be induced into it so that it will stop, otherwise वो आपकी डिस्क, मीटर की डिस्क घूमती रहेगी and you will have large unit value which we don't want, बिल ज्यादा आएगा। ये मीटर मतलब जो मीटर रीडिंग वाले मीटर हमारे घर के बाहर, that electric currents are induced in the disk by magnetic fields produced by sinusoidal varying currents। और यूज में बताती हूँ इसका, हमारा जो इंडक्शन होता है ना घर पे, इंडक्शन जो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं ना इंडक्शन, वो एडी करंट का यूज है। अगर किसी ने पूछा ऐसे, वैल्यू वैल्यू बेस्ड तो फर्स्ट राउंड में नहीं है, बट असर्शन कहीं पे भी यू शुड नो कि हमारा जो खाने बनाने वाला वो गैस नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, इंडक्शन, लोग तो इंडक्शन ही बोल देते हैं, तो इंडक्शन मतलब ये एडी करंट यूज होता है उसमें। इफ यू पुट योर हैंड ऑन टू इट एंड यू ऑन, यू विल नॉट गेट शॉक, यू विल नॉट गेट इवन योर द हीट, वार्म होगा ही नहीं आपका हाथ, क्यों, क्योंकि आपका हाथ में मेटल शीट नहीं है, तो बस हाँ, तो इसीलिए हम लोग इंडक्शन बेस्ड, ऐसे इंडिया इंडक्शन पे चल रहा है तो बॉटम बेस, ऐसा बॉटम जो होता है वो इंडक्शन बेस खरीदते हैं सो दैट इट विल वर्क। अगर वो हमने खोल के देखा है, वो सर्कुलर पार्ट अगर हमने खोल के देखा तो वहां पे एक कॉइल शेप, मतलब ये ऐसी शीट होती है वहां पे आपका, लाइक ऐसे डिस्क जैसा, विच इज वाउंड विद द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द दिस करंट वायर ओनली, और नीचे आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्रोड्यूस बाय मैग्नेट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड ऊपर आपका कॉइल है आपका, एंड उसके ऊपर आपका जो मटेरियल है, कभी कोई खराब हो गया तो ओपन करके देख, मेरे वहां एक खराब हो गया है तो आई विल शो, ओपन करके रखूंगी, एक खराब हुआ है, बस नाउ आई गॉट दैट कि हाँ ये दिखाने वाले मेरा खराब ही हो गया है, दो थे एक खराब हुआ है, आई विल ओपन दैट एंड आई विल शो यू। तो दैट इज द थिंग कि ये इंडक्शन है। और कुछ याद आए तो, इवन हाँ कुछ कुछ घरों में लाइक आपकी जो मेटल की बकेट होती है ना वो यूज करते हैं, उसमें क्या डाल दिया हमने, दिस काइंड ऑफ सम रॉड इज देयर, एंड ये ना मोस्टली बच्चे यूज करते हैं हॉस्टल्स में, हॉस्टल में पता है ऐसा रॉड काइंड ऑफ थिंग दे कैरी टू हीट द दिस पानी, वाटर गर्म करने के लिए, नहाने का पानी गर्म करने के लिए, they use this kind of rod direct ऐसे,
वेरी स्कैरी। में मेटल की ही बकेट चाहिए, प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते, इतना हीट विल बी जनरेटेड, क्योंकि डायरेक्ट उससे प्लग से लगा देते हैं एंड देयर इज नो कन्वर्टर, मतलब डायरेक्ट जो एसी करंट है दैट ओनली इज गोइंग टू पास थ्रू दैट कॉइल, सो दैट इज व्हाई बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है इन योर वाटर। अरे बच्चे इसमें मैगी बना देते, पतीले में डाल देते हैं हॉस्टल वगैरह, मतलब आई एम शेयरिंग यू एक्सपीरियंस ऑफ माय स्टूडेंट्स ओनली मतलब उन लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बताते हैं तो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस द लॉन्ग टॉपिक वी कंप्लीटेड, बट एट द एंड ऑफ इट थोड़े डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ समझ लेंगे कि कैसे डिराइव पढ़ेंगे ऑब्वियसली, बट यू आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर, दैट्स द वेरी गुड थिंग नाउ, आई एम वेरी मच हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं कि डेरिवेशन नहीं है, बच्चे फेडअप नहीं होंगे स्टडी से। तो व्हाट इज दिस इंडक्टेंस, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेनेवर दिस कॉइल, ये कॉइल जब इसके पास आया मैग्नेट NS, तो इट इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल, सो दैट इट शुड नॉट कम टुवर्ड्स इट, सो दैट एंड हाँ, बट वो आ गया तो इट विल use some current, तो ये करंट इंड्यूस होता था एंड द डायरेक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्थ पोल या साउथ पोल हो रहा है, एंड दैट वे वी लर्न। सो एक्चुअली व्हाट इज इंडक्टेंस, inductance is producing current in the same coil or to another coil, suppose दो ही coil है, दो coil है, suppose इसमें मैंने बैटरी लगाई, तो खुद का इंडक्टेंस भी खुद को लगता है, that is called self inductance. We are going to learn now, we are going to learn two types of inductance, by the way inductance तो introduction में था, फिर से आ गया inductance, तो यहाँ पे we are starting end के chapter में, end part of the chapter says that it has two types of inductance, self inductance and mutual। नाम से समझ में आ रहा है, self मतलब खुद का change in flux खुद only will observe and खुद में ही करंट में रिडक्शन करेगा, वो खुद का ही लॉस करेगा, सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्ट। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है इसको, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब वही, if there is a change in flux produced by the same coil is called self inductance। अगर दो कॉइल है, इसमें से करंट पास हो रहा है और इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, मतलब इसका करंट इसको अफेक्ट करेगा, सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल, म्यूचुअल में दो चाहिए ऑब्वियसली, so there is a change in flux in the coil linked with another coil is called mutual inductance। but अब डेरिवेशन की बारी आई, we are not going to learn but actually you should know some formulas because उसके बेस पे क्वेश्चन आने बनते हैं। actually I don't think इसके बेस पे न्यूमेरिकल would be asked by the way, इसके बेस पे मुझे लग रहा है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए ये इंडक्टेंस या डायग्राम टाइप के, ऐसा कुछ। यस, एंड अगर थ्योरी बेस्ड पेपर आपका बना तो आई विल टेल यू कि कौन से स्कूल में कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो भी पता है मुझे। तो यस, तो however in both the cases flux through a coil is proportional to the current। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एक ये एंड एक इसके बाद वाली, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेड वाला, ये वाला पार्ट इफ यू डोंट राइट आई ब्रेक इट, so it's fine, mathematically you can write। आप याद रखो, रिमेम्बर भी लिखो इसमें कि ये याद रखना है, स्टार कर लो, phi is directly proportional to I। मतलब सपोज इफ इट इज सेल्फ इंडक्टेंस है तो खुद का ही करंट प्रोपोर्शन में रहेगा खुद के ही फ्लक्स, अगर म्यूचुअल है वी आर गोइंग टू सी दैट इन डिटेल, तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ये कॉमन वी आर लर्निंग, देन सेपरेट आल्सो विल गो दैट वे, so you will understand। and what about this is general formula for both type of inductance, self and mutual। if the geometry of the coil does not vary with time, geometry मतलब वही area of the coil, cross sectional area या length of the coil या number of turns and all, these are like geometry, like geometry kind of coils। if it is not varying then
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये डी बाई डी टी याद रखो, डी फाई बी, फाई क्या है अपना, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड यू कैन सी दैट टाइम इज इन डिनोमिनेटर, तो ये टाइम हुआ, बट इट इज डी बाई डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, so rate of change of time with respect to this of magnetic flux इससे change होगा तो directly proportional to the rate of the current, time rate of change of current. The next thing is you are going to learn this coil. Suppose this is a coil. अब ये एक नंबर तो नहीं है, like एक number of turn नहीं है, 2 भी नहीं है. Suppose we have n number of turns. Suppose it is made up of n number of turns, and each turn is producing phi b. Magnetic flux is phi b. So n number of turns are going to produce n phi b. B stands for magnetic flux. Like sometimes we used to write इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई, अगर पेपर में दिया है दे शुड मेंशन इट कि भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेट, वी हैव लर्न बोथ द फ्लक्स. So this is flux linkage with n turns is n phi b. So n phi b directly proportional to time. So why? Because ऊपर हमने पढ़ा कि भाई चलो एक ही नंबर ऑफ टर्न है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो n phi b is directly proportional. The constant of proportionality is called inductance. इसका जो अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आया ऑफ इंडक्टेंस, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे दैट इज आवर इंडक्टेंस. बट कौन सा? वी विल हैव सेल्फ इंडक्टेंस, विल हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस जब पढ़ेंगे तो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम एल लिखेंगे, एंड जब म्यूचुअल पढ़ेंगे ना तो उसके टाइम पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एम बोलेंगे. सो एल स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल के लिए वी विल राइट एम. सो दैट इज व्हाई हम लोग इसको अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट्स है, सारे जनरल पॉइंट्स. वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट एंड एट दैट टाइम विल डू. इट डिपेंड्स, इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, मतलब लाइक क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, क्या फर्क है, एंड लेंथ ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो एन तो आ गया कैपिटल है. एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक मटेरियल, मतलब किसके ऊपर वुंड है भाई ये, so that property also matters over which material is it inside it, that material. So this aspect, मतलब ये ज्योमेट्री पे डिपेंड है, ये एस्पेक्ट हम कहाँ पढ़ चुके हैं. रिलेटिव क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर का क्वेश्चन है तो वही चैप्टर का होगा, रिलेटिव कहीं और से कुछ पूछ देते हैं, डाल देते हैं. तो दैट इज व्हाई ये जो हम पढ़े थे लाइक कैपेसिटेंस विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर आपको याद है तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हम लोग कर चुके हैं. यहाँ पे भी देखो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, इवन द डिस्टेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इफ यू रिमेम्बर, इनका बीच का डिस्टेंस इज डी एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए टू पैरेलल प्लेट सी, राइट? सो दैट इज हाउ it depends, capacitance depends on the geometry of that. And dielectric constant, dielectric constant कैसे? because ये epsilon naught आया. epsilon naught मतलब suppose air है between this parallel plate capacitor के बीच में, अगर air है तो epsilon naught. अगर कोई material, suppose कोई material है तो we would have taken epsilon. तो ultimately it depends on the dielectric constant. Dielectric constant थोड़ा याद कर लो, K is equal to epsilon by epsilon naught. ये epsilon is absolute permittivity of the medium, permittivity, and it is permittivity of free space. थोड़ा पहले चले गए, थोड़े आगे. Inductance is a scalar quantity. Magnitude, no direction. Dimension याद रखने की जरूरत नहीं है.
नहीं है, मतलब आपको डिमेंशन थोड़ी है। एंड ऐसा यूनिट इज हेनरी आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हेनरी। ये हेनरी कहाँ से आया, तो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बहुत काम किया है विथ रिस्पेक्ट हेनरी। समटाइम्स अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो पूछते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, मतलब आपका 1 हेनरी का डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, बट नॉट विथ दैट रिमेम्बर थिंग। ऐसे भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन दे दी, कौन सी डेफिनेशन है ये, मतलब कैसे भी बन सकता है। So that is the like mathematical way of understanding of inductance. Is it sure? Mutual inductance, it is the first type of inductance we are going to learn too. So mutual inductance, mutual मतलब as I told you, मतलब एक कॉइल में कुछ करंट चेंज हो रहा है तो दूसरे का मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डिफरेंट, and due to that whatever the inductance induced in the second coil is called mutual inductance. Okay. So mutual inductance is the phenomena of inducing EMF. मतलब समझ लो, just your understanding, I'll show you one diagram. नाइस नोट्स, बट मैंने सारे शॉर्ट कर लिए, सारे मेरे नोट्स भी मैंने शॉर्ट कर लिए इस बार। सपोज दिस इज योर प्राइमरी, चीजें निकल जाती है। AC generator is, we are not going to learn now, we are going to learn in next chapter, but AC generator is not removed, but वो इंडक्टेंस का पार्ट है एक्चुअली, इट इज नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर इज AC, तो AC जनरेटर उसमें है। अरे AC में से कुछ कुछ पार्ट नहीं, एक ही पार्ट निकला है, वॉटलेस करंट, एक डेफिनेशन है छोटी, इससे हाफ डेफिनेशन है वॉटलेस करंट, बस वो निकल गई है, डोंट वरी अबाउट दैट। Suppose this is a primary coil and इसको मैं बोल देती हूँ secondary coil, and galvanometer is connected so that we will be able to see that is there any change in the other coil. So yes, if we close the key, as soon as we close the key, the current will be induced into the primary coil. इसके साथ जो फ्लक्स लीकेज होगा लिंकेज होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ will induced EMF into the second coil, and due to this induced EMF, induced current will be set in the secondary coil, and इसको बोलते हैं म्यूचुअल। थोड़ा इजी वे में, बहुत इजी वे में समझने लगे हैं, लास्ट 3-4 क्लासेस से मैंने थोड़ा इजी कर लिया। I don't say much like word to word, we are not going, no need of आर देखते हैं हम लोग कि भाई इसमें जरूरत नहीं है इतना वर्ड टू वर्ड देखने की, समझ लो बस, एंड दैट इज एक्चुअली गुड। वर्ड टू वर्ड याद रखते थे, वो रट्टा मारना है नॉलेज का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग EMF इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। इसीलिए मैंने बोला एज सुन एज वी क्लोज द की, जब की क्लोज की तो करंट जीरो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा कम होगा, एंड एज सुन एज वी क्लोज द की तो करंट विल बी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम पे चला जाएगा। जैसे ये 0 टू मैक्सिमम जब जाता है, एट दैट मोमेंट flux will be changed, and this change in flux will induce EMF and hence current into the secondary coil. So that was mutual inductance. Let us understand with that context के हमने जो पढ़ा इंडक्टेंस में अभी just previous class, previous thing, कि भाई जो फ्लक्स है ये phi2 मतलब फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल, सॉरी सेकेंडरी मतलब सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट या ड्यू टू वन। ये सेकेंड कॉइल की बात है, phi2 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू वन,
that is proportional to 1. ये 1 क्यों आया? Because we are inducing, we are changing the current in the one coil. फर्स्ट कॉइल में हम लोग चेंज दे रहे हैं एंड ड्यू टू दैट सेकंड कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस फॉर्मूला केम 5 to 1 and hence m is the proportionality constant and which is called as mutual inductance or coefficient of mutual inductance. ये है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन की तैयारियां कर रहे हैं. मैथमेटिकल डेफिनेशन की तैयारी मतलब इफ वी मेक I1 as 1, योर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द फ्लक्स. आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स के जैसा हो जाएगा, जितना हो जाएगा इफ योर करंट इज 1 एम्पियर. 1 मतलब यूनिट मतलब 1 एम्पियर ओनली. So the mutual inductance is defined as the magnetic flux. The mutual inductance magnetic flux कितना लिंकेज हुआ सेकेंडरी कॉइल के साथ when unit current flows into it. तो ये है आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ, ऊपर वाली जो थी फिजिकल डेफिनेशन, और ये है आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन MD. चलिए, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी नहीं, ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो, कि EMF induced in the it induce the coil. ये फैराडे ने बोला था, फैराडे इसका सेकेंड लॉ बोला था. फर्स्ट लॉ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस का डेफिनेशन था. वो इंडक्टेंस का डेफिनेशन इज सेम एज फैराडेज फर्स्ट लॉ, कि भाई आप जब भी करंट इन चेंज, फ्लक्स इज चेंज्ड, EMF इज इंड्यूस्ड. वो आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ इज द मैग्नीट्यूड. इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF. कितना इंड्यूस्ड हुआ भाई, इंड्यूस हुआ वो तो बोला उसने, बट कितना हुआ, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज. उसने बोला कि d∅dt कितना होता है d∅dt जी. बट फिर लेंस आया, ये फैराडे ने बोला था, ये फैराडे ने. देन लेंस के, लेंस बोला कि ये डायरेक्शन तो उल्टी होती है भाई, तो EMF हमने खोल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया एंड माइनस साइन इंट्रोड्यूस्ड. कि जो भी इंट्रोड्यूस करेगा ना वो अपोज करता है, जो भी करंट आता है वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन. So that is how it became minus d∅dt. So whatever phi was there, phi to 1, मतलब obviously change in flux second में ही हो रहा है due to 1, because हम लोग 1 को ही current change कर रहे हैं. So that is why 2 to 1 है, 2 with respect to 1 by dt. This is from definition of electromagnetic. And ये, oops, there is a mistake. ये proportion होना चाहिए. And then we substituted proportionality constant. थोड़ी गड़बड़ हो गई. तो इसमें अभी डेफिनेशन, इफ आई वांट टू मेक डेफिनेशन ऑफ इट, मैं क्या करूं, मैं ना di1/dt को 1 कर लूं ना. तो whatever m will be my induced EMF. So I can define again in different way कि हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ EMF. कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका EMF हो जाएगा व्हेन योर di1/dt. di1 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल. डेफिनेशन बन गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, अगर आपका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इन द फर्स्ट कॉइल इज यूनिटी, योर EMF इंड्यूस्ड इनटू द सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा है, वर्डिंग कैन बी डिफरेंट. बुक में बड़ा डायरेक्ट है, हम लोग बेस से पकड़. तो व्हाट इज द SI यूनिट? सेम एज इंडक्टेंस. इंडक्टेंस के दो टाइप्स, दोनों के सेम, म्यूचुअल हो या सेल्फ, दोनों के हेनरी. SI यूनिट. नाउ व्हाट टू, हाउ टू डिफाइन 1 हेनरी? म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमने दो डेफिनेशन देखी है. यू कैन सी दैट ये आपका MD1
तो ये आपका हो गया MD2, mathematical definition 2. Similarly, you are going to learn for self-inductance. Two different types of definition. Physical, one, and mathematical, two definitions will be there in self also. एक आ गई, सारी आ जाएगी. इजी है. सारा कहाँ काम आएगा तो वही आएगा. But this won't be asked. What is 1 Henry? नहीं पूछेंगे 1 Henry. वो एक्सटर्नल बहुत स्ट्रिक्ट होता है क्या? नहीं, हाँ दिखाते हैं स्ट्रिक्ट. कैन स्ट्रिक्ट मार्क्स देने के टाइम पे डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट. डोंट मेस विद इट. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी. क्यों 1 हेनरी होगा? ये फर्स्ट डेफिनेशन देखो, आई विल शो यू. ये फर्स्ट डेफिनेशन इज दिस वन. यहाँ पे आपका M जो है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, इफ यू वांट 1 हेनरी, इफ यू वांट 1 हेनरी, व्हाट वुड वी डू? कि हमारा जो करंट है उसको तो हमने यूनिट बनाया था वो टाइम पे, I1 इज इक्वल टू 1 तो किया था. नाउ आई विल मेक दिस पाई आल्सो 1 वेबर. तो 1 वेबर ये याद रखना पड़ेगा. पाई का वेबर होता है फ्लक्स, कोई भी हो, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, वेबर ही है. वेबर इज अगेन दिस आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 हेनरी जो है ना, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले रही हूँ यहाँ से, तो ये 1 वेबर बाई ये I1 अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो 1 एम्पियर. ऐसे अल्टीमेटली ये याद रह जाएगा इजीली कि 1 हेनरी. इफ यू वांट टू डिफाइन, देन 1 करंट, यूनिट करंट शुड पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल, सो दैट सेकेंडरी कॉइल में 1 वेबर magnetic flux will be linked with it, and that is how 1 Henry mutual inductance will be set. ये सेकेंड डेफिनेशन है. ये हेनरी की डेफिनेशन है. ये हेनरी 1, हेनरी की 4 डेफिनेशन है बाय द वे. हेनरी 2, हेनरी 1, हेनरी 2. अगेन हेनरी 2 मतलब 2 हेनरी नहीं, 1 हेनरी only will give the definition of 1 Henry. When ये definition कहाँ से आई? I'll tell you. This definition came from this definition of, yeah, by mistake. आप ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखो. मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट 1 हेनरी है तो समझ लो. ये डेफिनेशन में अगर आपको 1 हेनरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमने कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल 1 यूनिटी, मतलब यूनिटी रखा था, तो ऑब्वियसली दैट विल बी 1 यूनिटी. बट एट दैट टाइम di1 by dt you made unity, but now m is equal to e, so this e also you have to put 1 only, no? तो e मतलब ये वोल्ट में होता है. तो if you get like this, आपका automatically m will be 1 Henry. Everything is 1, so you'll get 1 Henry. This I'll show you ये कैसे बनेगा, because your formula is, बनाया मैंने पूरा ppt, m di1 by dt है, तो ये 1 वोल्ट हो गया. डिनोमिनेटर में 1 एम्पियर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हेनरी. कुछ ऐसे बन रहा है आपका पूरा फंडा. That is how 1 Henry when unit rate of change of current, that means 1 ampere per second primary coil induced EMF into म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स. ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुआ करता था एक जमाने में, बट सिंस वी डोंट हैव डेरिवेशंस, हम लोग ऐसे थियरी के जैसे पढ़ेंगे. डेरिवेशन हल्का सा लेंगे, नॉट गिविंग ईच एंड एवरी स्टेप, main steps. This is your primary coil. As we are learning mutual inductance, we should have one more coil, secondary coil. So we are going to give primary coil को कोई current देंगे, and we are going to check that whether secondary coil में कुछ change हुआ, current में change. This diagram is weird, book का diagram.
इसके वी आर टेकिंग, हाँ उसमें एक चीज है कि उसमें R1 एंड R2 आर डिफरेंट. ओके, इफ यू हैव डिफरेंट और सेम, फंडा सेम ही रहेगा, फाइनल आंसर सेम ही आएगा. अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम लो या डिफरेंट लो, बिकॉज लिंक्ड जो है सेम ही आएगा. आई विल टेल यू उसका लॉजिक भी. चलिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए कॉमन, मोस्टली वो कॉमन ही लेते हैं आप. इन दिस केस ना व्हाट दे कैन डू, यू नो, ये डायग्राम दे देते हैं आपको एंड दे विल आस्क यू कि भाई क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये पूछते हैं. तो ऐसे पूछ सकते हैं. दे विल गिव यू दिस डायग्राम इन द क्वेश्चन पेपर एंड दे माइट आस्क यू कि भाई आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताइए. हाँ, फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट विल नो डिस्क्रिप्शन, नथिंग, अंडरस्टैंड लाइक दिस ओनली. क्योंकि हम लोग कहाँ पे करंट दे रहे हैं, वी आर गिविंग करंट टू द प्राइमरी कॉइल. प्राइमरी में करंट दिया. इफ इट इज, ये तो कॉइल है ना अपना, सोलेनॉइड का फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला केम फ्रॉम सोलेनॉइड, फोर्थ चैप्टर. E is equal to mu naught Ni, where mu naught is the permeability. यहाँ पे mu naught of free space, permeability of free space. N is the number of turns per length of the solenoid. Then this small n is the number of turns. Capital N है तो total number of turns, हमेशा बड़ा N total number of turns, छोटा N per unit length. And I है ये, L नहीं है, I. This is I. I is the current flowing through it. तो mu naught Ni एक फॉर्मूला मैंने बोला था, mu naught Ni ऐसा हम लोग लिखते थे जनरली, ये फॉर्मूला ये. ओके, अब जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड की सेकेंडरी को, सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा. क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला? Y इज इक्वल टू B डॉट A, ऐसा था ना, बा. यहाँ पे cos theta is 0, so that is why your flux is equal to bound, and that is how here flux linked to second coil with respect to 1, 5 to 1. Second coil with respect to 1, 5 to 1 per turn. Is it per turn क्यों आया? Otherwise I have to multiply n over here, but यहाँ पे n multiply नहीं किया right side, so that is why we are taking per turn. Otherwise we'll put NBA, number of turns, because 5 तो एक turn देगा, दूसरा 5, तीसरा 5, n number of turns. So that is why later on we can multiply. Next step में आएगा वो. तो phi is equal to B1A, because flux is magnetic field is given by the first coil, but link किसके साथ है? Second coil. Second coil का एरिया है E. B1 का सब्स्टिट्यूट कर लिया and N मतलब या N1 by L, ये L है डिनोमिनेटर. Okay, that is how we got this formula. Yes, तो ये तो per turn है, per turn. Suppose secondary coil is having n2 number of turns. Suppose secondary के n2 turns है, so that means ये तो per turn था, तो n2 will be multiplied. n2 multiply हुआ तो mu naught n1 n2 I1 A by L. Simple है, just n2 is multiplied, because your flux will be n2 into 5 to 1 per turn. बस ये यूज किया फंडा हमने, जो इंडक्टेंस में ऑलरेडी समझ चुके हैं. तो व्हाट इज योर M2A, यहाँ पे हमने फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई आपका जो फाई होता है विच इज इक्वल टू MI. देखा ना हमने, फाई एक्चुअली फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जितना आपका फ्लक्स चेंज है उतना आपका करंट इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू MI. M is the mutual inductance. So that means if we compare these two equations, we got M21. If we compare, यहाँ पे यहाँ compare किया जाए, so you will be getting कि भाई ये मिल गया आपको. And यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे? Because your N1 is N1 by L and your N2 is N2 by L. No need to remember the derivations, but ये सारे फंडे हैं, because if your question, like if your numerical is based on this, you should know कि number of turns दिए हैं
या नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ दिए हैं. सो अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला. दैट्स द रीजन वी शुड नो द फॉर्मूला. सिमिलरली ये तो हमने क्या फाइंड आउट किया, mutual inductance in secondary coil with respect to the primary coil. Suppose if I want to find out mutual inductance of primary coil due to secondary coil, suppose मैंने current secondary coil से pass किया, तो if you get will be same, दोनों से same मिला. So that is why कोई भी substitute करो, m is equal to m1 is equal to m, which is अब यहाँ पे आया जो यहाँ पे है ना, थोड़ा अलग R1 R2 अलग है ना. सो हमेशा जो छोटा वाला R1 रहेगा ना वही अंदर आएगा फॉर्मूला में, छोटा वाला. सपोज योर कॉइल एक का R1 इज द क्रॉस सेक्शन एरिया इज R1 एंड दूसरे का R2. सपोज आई मेड R1 स्मॉलर देन R2, तो आपके फॉर्मूला में A में पाई R1 स्क्वायर ही लगेगा. क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई R स्क्वायर सर्कुलर, बट R1 स्क्वायर ही लगेगा. जो छोटा वाला है वही लगेगा, बिकॉज फ्लक्स लिंक्ड विद इट. द रीजन इज वेरी सिंपल, फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल विल बी R1 ओनली. बस सारा प्रोड्यूस कर रहा है बट ले कौन रहा है, हमेशा छोटी वाली कॉइल मैटर करती है. Yeah, for more two long coaxial solenoid same length cross sectional area. हाँ ये तो कुछ नहीं, सेम है, रेसिप्रोकल. सारे सेम है, तो कॉमनली नेम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. नॉट 2 1 1 2, बोथ आर सेम. फॉर्मूला याद रख लेना, हो जाएगा. बस ये एक ही फॉर्मूला इनफ है. यहाँ पे हम लोग साइड में लिख सकते हैं कि एक ही फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट n1 n2 a by l and म्यू नॉट स्मॉल n1 वाला भी ले लो. ओके, वॉट एवर द गिवन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हियर. ये दे डोंट गिव डायरेक्टली एरिया, वो लोग एरिया नहीं देंगे तो वो आपको रखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर. छोटा वाला जो भी R1 है, छोटा वाला R लेना है. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओनली 2 इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड. ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे R आया. व्हाट इज दिस R, मतलब दिस. तो वी नो दैट रिलेटिव परमिबिलिटी. सपोज ability, suppose your whatever the solenoid is not alone but it is having some magnetic core. Okay, that means it is wound over some surface. That means in that case your your relative permeability will matter. Relative permeability is mu by mu naught. That means your formula was there, no? Mu naught, mu naught, then n1, n2, a by l. ऐसा कुछ था ना? Mu naught, n1, n2, a by l. But now भी mu naught नहीं है. This is for air or free space. अगर free space है, but if it is wound over some surface, that means your mu naught will be replaced by that particular permeability of the substance on which it is wound. That is why mu की जगह पे क्या डालेंगे, तो relative permeability बोल रहा है कि mu is equal to mu r mu naught. So mu r mu naught introduced. So n1, n2, a by l. If the solenoids S1 and S2 have number of turns N1 N2 of different radii, ये हम लोग already discuss कर चुके हैं कि जो छोटा वाला R है वही फॉर्मूला में आएगा, दूसरे का दिखना ही नहीं है, कुछ भी बोले. So that is why I told you कि ये डायग्राम देंगे, R1 R2 डिफरेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. R1 पाई R1 स्क्वायर डालेंगे, पाई R2 स्क्वायर डालेंगे, पाई R1 स्क्वायर इज द आंसर. ये नहीं देखना है, दिस इज नॉट देयर. थर्ड रहेगा, फोर्थ
फिफ्थ कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट है. This is not there. This is like relative placement of solenoid matters. This is relative placement, I'll tell you. ये तो मैं next में सिखाने वाली हूँ. लिख लो अभी के लिए. We are going to draw the diagram also. But factors depends. Factors on which mutual inductance depend. I could not write this part. Next heading. हाँ, ये कुछ theory question है, तो पूछ सकते हैं, right? तो एक चीज तो अपने को पता है. It depends on the geometry. Depends on either their geometry of and magnetic permeability. Geometry मतलब वही अपना जो permeability रह गया. ओके, तो वही अपना जो नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट, नंबर ऑफ सेकेंड में कितना टर्न्स है, एंड लेंथ ऑफ द कॉइल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो सब. एंड परमिएबिलिटी मतलब किस पे आपने बॉन्ड क्या मतलब किसके ऊपर लपेट लिया आपका सोलेनॉइड, तो उस पे डिपेंड है ऑब्वियसली. सोलेनॉइड ऑफ दिस सॉरी कोर मटेरियल, मैंने परमिएबिलिटी लिखा है तो कोर मटेरियल क्या है आपका. फर्स्ट थिंग, number of turns. As we saw in the formula, m का फॉर्मूला में आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n1 and n2. m is directly proportional to n1 and n2. Okay? As your number of turns is high, your mutual inductance will be high. As n1 or n2, your m high. Right? Common cross sectional area. Common cross sectional area. वो इसमें आपने देखा कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है. तो एज योर एरिया हाई, योर म्यूचुअल इंडक्टेंस हाई. थर्ड अब आया वो, आई टोल्ड यू नो सेपरेशन है आएगा रिलेटिव. हाँ, रिलेटिव सेपरेशन. रिलेटिव सेपरेशन कितना दूर है. एज यहाँ पे दूर नजदीक की बात ही नहीं आई ना, हमने फॉर्मूला में है ही नहीं. m says that m is equal to mu naught n1 n2 a by l. इसमें सेपरेशन की बात, l is तो लेंथ ऑफ, सेपरेशन की बात नहीं. बट यू जस्ट इमेजिन आपका प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल अगर फार है तो क्या लिंक होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज? ऑब्वियसली नहीं. तो दैट इज द रीजन कि म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी लेसर इफ इट इज फार. Definition में था ना in the vicinity. Vicinity, yes, correct. So as distance increases, your magnetic flux decreases. आपका म्यूचुअल मैग्नेटिक फ्लक्स बोला मैंने, म्यूचुअल इंडक्टेंस चल रहा है, हो जाता है, मैं कहीं और पहुंच जाती हूँ. रिलेटिव ओरिएंटेशन. रिलेटिव ओरिएंटेशन मतलब सपोज आपकी प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल पूरे अच्छे से एक के ऊपर एक लपटी हुई है. योर मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, योर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम. सपोज योर प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल कुछ ऐसी, you can see it's like linkage is very low, so your mutual inductance is so relative orientation matters. बोर्ड पे पढ़ाने की
पढ़ा रहा है। That's it for mutual inductance and यहीं पे हम लोग बंद करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, क्योंकि पूरा ऐसे ही लंबा पढ़ना है एंड एक सैचुरेशन आ जाता है फिजिक्स के टाइम में। आई कैन अंडरस्टैंड दैट।